again. Dynamic memory allocation is the topic. We all know that whenever we create variables in main, the memory for those variables is allocated at compile time. Now thing is, your teachers might have been using these terms compile time, run time. You should be aware of what is the difference between compile time and run time. Most of you might already know all this, but those who do not know, I'll give you a recap. Whenever you press Ctrl F9, your program passes through different phases. First of all statements written with hash include, hash define, they get executed, and the phase is called preprocessor phase. Once pre-processing is over, it gets over, we enter into compile time phase. In compile time phase, our compiler comes into action. What it does is, our compiler checks the code for syntactical errors. If the grammar of the program is correct, if the syntax written is 100% correct, your program will be converted from high level language to machine understandable form, जो कि कंपाइलर का काम है. ठीक है, तो कंपाइल टाइम में क्या क्या काम होंगे? सिंटेक्स चेक होगा, ग्रामर चेक हुई आपकी, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो रिपोर्ट की गई, प्रॉब्लम नहीं आई तो क्या हुआ? हाई लेवल कोड विल बी कन्वर्टेड इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. प्लस एक और काम होगा, ऑल वेरिएबल्स विच यू क्रिएटेड, इंट एक्स अभी बनाया, ठीक है, इंट एनरोलमेंट नंबर, कैर स्टूडेंट नेम, ये जितने वेरिएबल्स आप बनाते आ रहे हो प्रोग्राम में, इनके लिए मेमोरी भी तो रिजर्व करनी है ना. वी नीड टू रिजर्व space in the main memory for these variables, and this reservation will happen when? During compile time. कंपाइलेशन के दौरान ही इनके लिए मेन मेमोरी में जगह बुक कर दी जाती है, और एक बार जो जगह बुक हो गई उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता. ज़्यादा जगह बुक करके उसको कम यूज़ करना मेमोरी वेस्टेज होता है. कम जगह बुक करने से अलग समस्या खड़ी हो जाती है कि अगर रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो तो मेमोरी कम बुक. प्रॉब्लम विथ कंपाइल टाइम एलोकेशन इज the amount of memory that you want compiler to reserve cannot be altered later on. Say for example, you declared an array of size 5, means you need 5 rooms. Then 5 rooms shall be allocated to your array. But the problem is, if you have the 6th element coming up, you do not have a space, you cannot increase the space. 5 means 5. And if you create an array of size 50, but you have lesser number of elements to store, then it will lead to memory wastage. Fine. So another topic that we can say will remove this limitation is dynamic memory allocation. In this topic, you will learn that we can reserve or we can allocate memory during runtime. Now, what is runtime? Once your compilation is done, once linking and loading has been done, then comes the runtime. And during runtime, you get to see the results on the screen. So, what will be the benefit of this memory allocation? Allocating memory at runtime. At runtime, we will ask the user, how many rooms do you actually need now? Tell me. And if the user says, I need 10 rooms, I'll allocate 10 rooms. If user again demands, sir, 5 more I need, so I can increase the size, I can increase the amount of memory. But at runtime, allocating memory at runtime, it will not happen automatically. For this, in C, we use functions like malloc and calloc. And in C++, we will be learning two operators, new and delete. Am I clear on this? So let us look at the topic, dynamic memory allocation. So here, now we have two types of memory available in the computer. One nomenclature says that the one type of memory that we have is stack allocated memory. Now, what is this stack allocated memory? I'll just show you, just a minute. In stack allocated memory, what actually happens is, look at the example shown below. In the example written below, it shows that we have a main function which is giving a call to function f. Now, when you move to the body of f, f in turn gives a call to g, another function. And when we move to g, g recursively calls g.
this is a particular hypothetical scenario that I am asking you to concentrate on. So let us see how this particular thing will happen. First of all, whenever you press Control F9, what will happen? Your main function will get called. You can see in the diagram, in the animation, main has been called. Now main will give a call to function f. When f gives a call to g, your diagram will go like this. Now g can again recursively call g, and once it is done, your allocated memory, first of all, memory will be allocated for the variables which are there in main. Then on top of those variables, memory will be reserved for variables declared in f. Then on top of this, memory will be reserved for variables in g. Again on top of that, memory will be reserved for another recursive call of g. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है, ऑन टॉप ऑफ. तो ये आपको नहीं लगता कि ये स्टैक के जैसा है? What is a stack? You have learned data structure stack. Stack follows last in first out. Means whatever you have item you have added at the end will be the first one to be removed. तो सबसे आखिर में मेमोरी किसके वेरिएबल्स के लिए रिजर्व हुआ? रिकर्सिव जी के लिए. तो जब जी का काम खत्म होगा तो क्या होगा? जी वाली मेमोरी फ्री होगी, फिर सेकंड जी के कॉल वाली मेमोरी फ्री होगी, देन एफ, एंड एट द एंड मेमोरी रिजर्व फॉर द वेरिएबल्स ऑफ मेन will be freed. तो ये order of calling समझ में आया? That is the reason that we call this type of memory as stack allocated memory. Now keep one thing in mind. During compile time, the memory that is allocated for our program, that memory is stack allocated memory. Means it is fixed in nature. When you call a function, whenever you call a function, memory is allocated for all of its parameters and local variables. Each active function call has memory on the stack with the current function call on the top. This is something important. That is the reason we are saying it is behaving like a stack. When a function call terminates, the memory is deallocated, means it is freed up. तो ये जो memory allocation आप देख रहे हैं, stack allocated memory, this will be managed by the compiler. You have nothing to do with this. ये compiler अपने आप करता है. आज तक जितने प्रोग्राम्स आप बनाते आए, आपने अपने प्रोग्राम में फंक्शंस भी क्रिएट किए, मगर आपको कभी मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में सोचना भी नहीं था. अपने आप सब कुछ होता जा रहा था क्योंकि टॉपिक था स्टैक एलोकेटेड मेमोरी का. मगर दूसरी कैटेगरी, द सेकंड कैटेगरी ऑफ मेमोरी एलोकेशन कैन बी लेबल्ड एज heap allocated memory. Now what is heap? Heap is a region of your computer's memory that is not managed automatically for you. मतलब अपने आप नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको करना होगा, कुछ नए फंक्शंस, कुछ ऑपरेटर्स आपको सीखने होंगे, तभी ही मेमोरी आप कर पाओगे. ठीक है? इट इज नॉट एज टाइटली मैनेज्ड बाय द सीपीयू. मींस पिछली वाली मतलब सीपीयू से टाइटली मैनेज्ड है. मींस इफ यू आर क्रिएटिंग एन एरे एंड यू हैव मेंशन्ड दैट यू नीड 5 रूम्स, इट इज टाइटली मैनेज्ड. यू डू नॉट हैव अ 6 रूम. 5 बोले तो 5. मगर यहाँ पे क्या होगा? जितनी चाहे मेमोरी आप रिजर्व करते रहिए, जब तक फ्री स्पेस अवेलेबल है हम आपको मेमोरी देंगे. लिमिटेशंस तो होती हैं बेटा. इट ऑल डिपेंड्स कितनी रैम और कितनी मेन मेमोरी आपके पास है, आपका प्रोसेसर कैसा है. आपके मोबाइल में भी जब आप खरीदते हो, यू गेट एट टाइम्स यू गेट 32 GB और 64 GB, तो लगता है अनलिमिटेड है. मगर आफ्टर यूजिंग योर मोबाइल फोन कंटिन्यूसली फॉर 1 or 2 years, दी मेमोरी गेट्स एग्जॉस्टेड. आप फोटो खींचते रहते हैं और वो भरती रहती है. तो एक समय आने पे तो भर जाएगी, वो भी भर जाएगी, है ना. तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड, इनफाइनाइट कुछ भी नहीं है. सब कुछ फाइनाइट है, मगर एटलीस्ट if it is available, if free memory is available, we can allot. So it is more free floating region of the memory and is larger. Of course it is larger. Heap memory is allocated in a more complex way than stack memory. More complex way क्यों? अब भाई ऑटोमेटिक तो नहीं होगा ना, कुछ प्रोग्रामिंग में कुछ करना पड़ेगा आपको. अब प्रोग्रामिंग में कुछ करना है स्टूडेंट्स के लिए तो कॉम्प्लेक्स ही होता है. तो इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसको, क्योंकि पॉइंटर्स सीखने पड़ेंगे, पॉइंटर्स की मूवमेंट समझनी होगी, है ना. इसीलिए कहते हैं कि हीप मेमोरी मैनेजमेंट या डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट इज रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स. नाउ सेकंड पॉइंट, like stack allocated memory, underlying system determines where to get more memory. Programmer doesn't have to search for free memory space. आपको मेमोरी स्पेस अपने आप वो ढूंढ के देगा, आपको कुछ नहीं करना. एलोकेशन, आपको कुछ फंक्शन सीखने और काम अपने आप होगा.
अनलाइक स्टैक, द हीप डज नॉट हैव अ साइज रिस्ट्रिक्शन ऑन वेरिएबल साइज, मतलब एरे का साइज पहले से बताने की जरूरत नहीं है, आपको जितनी मेमोरी चाहिए मिलती रहेगी। हीप मेमोरी स्लाइटली स्लोअर टू बी, ये इसका लिमिटेशन है। हीप मेमोरी is slightly slower to be read from and written to because one has to use pointers to access memory on the heap. तो हीप एलोकेशन पे काम करना वो आपके पॉइंटर्स के थ्रू होता है, कुछ इसलिए ऑटोमेटिक नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा ये एलोकेशन स्लो चलता है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो चलती है। टू एलोकेट मेमोरी ऑन द हीप in C language you must use built-in functions like malloc or calloc. Now Okay, before sir. learning calloc malloc function we all need to understand what are generic pointers. अब ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज अ जेनरिक पॉइंटर, और स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता जेनरिक पॉइंटर। आपने इंटीजर पॉइंटर सुना है, फ्लोट पॉइंटर सुना है, कैरेक्टर पॉइंटर सुना है, स्ट्रक्चर पॉइंटर सुना है, पॉइंटर टू अ फंक्शन भी शायद सुना होगा, मगर जेनरिक पॉइंटर शायद कुछ ने सुना हो मगर ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना। ठीक है, ये जेनरिक पॉइंटर क्या चीज़ है, इसको समझाने से पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि यूज़ कहाँ होता है। देखो, एक मिनट, कोड देखते हैं, कोड कहीं लिखा होगा, यहाँ देखिए सब ध्यान से। On the screen, there are three lines shown in red color font. The first line IPTR equal to int star. यहाँ कुछ लिखा है ना, ये int star, malloc, float star, malloc, char star, malloc. I hope you can see the slide and you can locate which part of the code I am reading. The three lines shown in red color. इसमें जो int star लिखा है, ये क्यों लिखते हैं? फ्लोट स्टार क्यों लिखते हैं, कैर स्टार क्यों लिखते हैं, टाइप कास्टिंग क्यों करते हैं? ये बेसिकली है तो टाइप कास्टिंग, है ना। मेलॉक के आगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इस चीज को हमें समझना है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, हमारा जो टॉपिक है वो है जेनरिक पॉइंटर। ठीक है, अब ये जेनरिक पॉइंटर क्या है उसको समझिए। मेरा क्वेश्चन आपसे Okay, ये है, sir. इफ आई क्रिएट अ फ्लोट पॉइंटर, ध्यान देना, इफ आई क्रिएट अ फ्लोट पॉइंटर एंड आई असाइन एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल टू इट, मैं एक फ्लोट पॉइंटर बनाऊं, फ्लोट पॉइंटर कैसे बनाओगे, फ्लोट स्टार एफ पी टी आर। इंटीजर पॉइंटर कैसे बनाते हो, इंट स्टार पी, तो फ्लोट पॉइंटर कैसे बनेगा, फ्लोट स्टार पी, है ना। अगर मैं एक फ्लोट पॉइंटर बनाऊं और उसको पता क्या दूं, एक फ्लोटिंग वेरिएबल का एड्रेस दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं अपने फ्लोट पॉइंटर को एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस दे दूं तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। आपको मैं कोड दिखाता हूं, जेनरिक पॉइंटर, ये डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले ये कोड पे ध्यान से देखिए। In this code, if you pay attention inside main, I created one integer variable x, I have assigned it a value 10, and on the subsequent line, I have created a float pointer, float star fptr. किसी को कोई डाउट इन दोनों लाइनों में? बहुत सिंपल लाइन है, x इक्वल्स टू 10 से वेरिएबल बन जाएगा, फ्लोट एस्ट्रिक्स fptr लिखने से एक फ्लोट पॉइंटर बन जाएगा। मगर क्लियर स्क्रीन के नीचे देखो एक लाइन है जहां पे मैंने क्या किया, पॉइंटर किस लिए बनाया जाता है, ताकि मैं उसको एड्रेस दूं। मैंने अपने पॉइंटर एफपीटीआर को एक इंटीजर वेरिएबल x का एड्रेस देके कोड को रन किया, तो नीचे देखो एरर आ गया। वो क्या कह रहा है कि इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन, पॉइंटर कन्वर्जन आई कैन नॉट डू, वो एरर दे देगा, कैन नॉट कन्वर्ट इंट स्टार टू फ्लोट स्टार। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, आपने वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप, पॉइंटर बनाया फ्लोट टाइप, इनकॉम्पेटिबल है ना, वेरिएबल इज इंटीजर, पॉइंटर इज फ्लोट, तो ये इनकॉम्पेटिबिलिटी इशू है, इसलिए एरर आ गया। इंटीजर वेरिएबल के लिए इंटीजर पॉइंटर बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर इंटीजर वेरिएबल के लिए फ्लोट पॉइंटर बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना समझ में आ गया सबको, से यस और नो? Sir. ठीक है, Yes, sir. yes Yes, sir. sir. अब अगली स्लाइड देखते हैं। अभी ये क्या कह रही है, पहले तो ये देख लो, कह रहा है असाइनिंग एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल टू अ फ्लोट पॉइंटर इज नॉट अलाउड। वो तो हम नीचे एरर के रूप में भी देख रहे हैं, एरर आया हुआ है, कह रहा है इंटीजर वेरिएबल है, पॉइंटर फ्लोट है, ये सब क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट अलाउड। सो लेट अस लुक एट दिस स्लाइड। इस स्लाइड में आप देखो, वेरिएबल तो मेरा इंटीजर ही है, मगर मेरा पॉइंटर कैसा है, वॉइड। पॉइंटर का टाइप क्या है, वॉइड, इसे कहते हैं जेनरिक पॉइंटर। वॉइड लिख के जो पॉइंटर आप बनाते हो वो कहलाता है जेनरिक पॉइंटर।
अब ये जेनेरिक पॉइंटर में क्लियर स्क्रीन के नीचे देखिए, मैंने लिखा fptr इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ x, मतलब इंटीजर का पता fptr को दिया, जेनेरिक पॉइंटर को दिया, तो कोई एरर नहीं आया, जीरो वार्निंग्स, जीरो एरर्स। समझ में आ रहा है? सर एक इधर डाउट था मेरा। प्लीज पूछिए। सर जो फिर ये वॉइड करके जो एफपीटीआर पॉइंटर बना है हमारा, वो हम्म, फिर किस डाटा टाइप का पॉइंटर बना है? ये जेनरिक है। जेनरिक मतलब ये किसी भी प्रकार के पते को एक्सेप्ट कर लेगा। जनरलाइज्ड, एक ऐसी सुविधा ठीक है सर। जो कहती है मुझे चाहे इंटीजर का एड्रेस दे दो, मुझे स्ट्रक्चर का एड्रेस दे दो, मुझे फंक्शन का एड्रेस दे दो, मुझे एरे का एड्रेस दे दो, तुम मुझे किसी भी चीज का एड्रेस दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं काम करना जानता हूँ। तो ये जेनरिक पॉइंटर है, इसीलिए इसका नाम है जेनेरिक पॉइंटर। इतना समझ में आया? हाँ जी सर, थैंक यू। कह रहा है इट वर्क्स विथ वॉइड पॉइंटर। इफ यू क्रिएट अ वॉइड पॉइंटर यू कैन डू दैट। वॉइड पॉइंटर को आप दुनिया में किसी भी डेटा टाइप का एड्रेस दोगे, वो ले लेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, कोई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है, सब काम सही से चलेगा। तो मेरे ख्याल से जेनरिक पॉइंटर क्या होता है वो अब डेफिनेशन में पढ़ लो, आपको अपने आप समझ में आएगा। अ वॉइड पॉइंटर इज अ स्पेशल पॉइंटर दैट कैन पॉइंट टू ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप। A void pointer is typeless pointer, also known as generic pointer. Void pointer is an approach towards generic functions and generic programming in C. ठीक है, अब ये जेनेरिक वर्ड जो आ रहा है इसको समझेंगे अभी थोड़ी देर में। आई थिंक जेनेरिक पॉइंटर डेफिनेशन एंड पर्पस एंड हाउ इट वर्क्स शुड बी क्लियर टू एवरीबडी। इफ यू हैव क्वेश्चन, इफ यू आर कंफ्यूज, आप जो मर्जी पूछिए। समझ आ गया तो मेलॉक केलॉक को समझने में अब देरी नहीं लगेगी, आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी। मेलॉक केलॉक से आसान कोई फंक्शन नहीं है, बहुत आसान चीज़ है डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, कोई भी डाउट है, जरा सा भी कंफ्यूजन है, प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि आगे अगर नहीं पूछोगे तो आगे वाली चीजें फिर थोड़ी सी टफ लग सकती हैं। चलिए, नाउ एलोकेटिंग memory, that is dynamic memory management, is the topic that we are supposed to learn. Allocating memory dynamically means allocating new heap memory. तो ये जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं इनका मीनिंग सेम है, आप डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट बोले, हीप मेमोरी मैनेजमेंट बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, इसके लिए आपको दो फंक्शन सी में यूज करने होते थे। एक फंक्शन था मेलॉक और एक फंक्शन था कैलॉक। मेलॉक वाला फंक्शन देखो लाइन नंबर 3 ऑन द स्लाइड, वॉइड स्टार मेलॉक साइज। अब ये वॉइड स्टार क्या है, क्या होता है वॉइड स्टार, बताओ? जेनरिक पॉइंटर से। जेनरिक रिक पॉइंटर पॉइंटर। है ना। आज तक शायद नहीं मालूम था, अभी क्लैरिटी मिल गई होगी बहुत सारे बच्चों को। ये जेनरिक पॉइंटर है। अब आप कहोगे, मैं आपसे पूछता हूँ, ये इंट क्यों, इंट स्टार क्यों नहीं है, फ्लोट स्टार क्यों नहीं है, कैर स्टार क्यों नहीं है? तो भाई मुझे बताओ, मेलॉक का काम क्या होता है, मेमोरी रिजर्व करना। ठीक है, और जो मेमोरी रिजर्व कहाँ पे करेगा, मेन मेमोरी। मतलब इसको जितने कमरे में बोलूंगा ये बुक कर देगा मेरे लिए, मेरे मेहमान आने वाले हैं और मुझे उनके लिए कमरे बुक करने हैं। तो मेलॉक का काम क्या है, रिजर्विंग मेमोरी फॉर मी, और उसका पता मुझे लौट आएगा। ये तो बताएगा ना कहाँ बुक करके आया। आप मुझे कहते हो सर होटल में 5 कमरे बुक कर दो, मैं कहता हूँ दिल्ली के मैंने होटल में 5 कमरे बुक कर दिए, मेहमानों को वहाँ ले जाओ, तो आप पूछोगे सर कहाँ बुक किए वो भी तो बताओ। तो मैं कहूँगा JW मैरियट में किए हैं, कहाँ किए, ताज में किए हैं, कुछ बताना पड़ेगा ना एड्रेस। तो मेलॉक की ड्यूटी है कि साइज जो अंदर लिखा हुआ है उतनी तो मेमोरी तुम बुक कर दो मेरे लिए, और मेमोरी कहाँ बुक करके आए हो उसका पता मुझे लौटा दो। रिटर्न द एड्रेस so that I can reach that memory location and I can do my work. तो ये जो एड्रेस आपको लौटाएगा, अगर ये इंटीजर वाला लौटाता तो फिर उस मेमोरी में आप क्या रख पाते, इंटीजर। अगर ये आपको पता फ्लोट वाला लौटाता तो उस मेमोरी में आप सिर्फ फ्लोट लौटा रख पाते, है ना। तो मेलॉक को क्या पता था आप मेमोरी किस लिए बनाएंगे। मेलॉक को मालूम था कि मेहर साहनी जब मेमोरी एलोकेट करेंगे तो वहां इंटीजर्स रखेंगे या फ्लोट रखेंगे, गॉड नोस, उनकी मर्जी। वो वहाँ पे स्ट्रक्चर इंस्टेंसेस रख सकते हैं, वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, बस वो जितनी मेमोरी कह रहे हैं मेरा काम वो रिजर्व करना है। वो कहेंगे 100 बाइट्स, मैं 100 बाइट फिक्स कर दूंगा। वो कहेंगे 1000 बाइट्स, आई विल एलोकेट 1000 बाइट्स। और मैं जो पता लौटाऊंगा वो क्या लौटाऊंगा, जेनरिक पता। मतलब पॉइंटर मेरा कैसा है, जेनरिक। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में करना है, कैर में करना है, जिसमें करना है, लेट मेहर सहानी डिसाइड। ठीक है, तो
रीजन समझ में आया? जेनरिक पॉइंटर इसका रिटर्न टाइप क्यों है? मैलॉक हमेशा जो वैल्यू लौटाएगा वो जेनरिक इन नेचर होगी, क्योंकि मैलॉक इंटीजर्स के लिए अलग से, फ्लोट के लिए अलग से, कैरेक्टर्स के लिए अलग से नहीं बना है। मैलॉक का काम है मेमोरी फिक्स करना, वहां क्या रखना है वो आप जानिए। आपको जैसी चीज रखनी है आपको मैलॉक को वैसा टाइपकास्ट करना होगा। आप ध्यान दें तो मैंने आपको एक कोड दिखाया था ये वाला, इसमें मैलॉक के बगल में एक जगह इंट स्टार लिखा है, रेड कलर लाइन नंबर 1, then on the subsequent line I have written float star, then on the subsequent line I have written char star। पहली लाइन मैं क्या कह रहा हूँ मैलॉक को कि भाई मेरे लिए मेमोरी बुक करो, और मैं वहां क्या रखना चाहता हूँ इंटीजर्स, मैंने इंट स्टार कर दिया। जब मैं फ्लोट रखना चाहता हूँ सेकंड लाइन में मैंने फ्लोट स्टार कर दिया। जब मैं कैरेक्टर्स रखना चाहता हूँ मैं कैर स्टार कर दूंगा। और याद करोगे डेटा स्ट्रक्चर्स, यू हैव बीन क्रिएटिंग नोड्स इन लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स, तो वहां मैलॉक के बगल में नोड स्टार लिखते थे आप लोग। वहां पे नोड क्या होता था? अपने आप में एक स्ट्रक्चर। कभी ध्यान से सोचा ही नहीं था कि वो नोड स्टार क्यों लिखते हैं, मैलॉक के राउंड ब्रैकेट में चीजें क्यों लिखी जाती हैं। आई थिंक शुड बी क्लियर बाय नाउ। सो most important thing, we have a function malloc, we have a function calloc. There is a difference between both. I'll explain the difference as well, but let us read out the bullets. Bullet number 1, it says allocate a block of size bytes। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे? कितनी मेमोरी चाहिए? मैं कहूं एक सिंगल इंटीजर के लिए मेमोरी रिजर्व कर दो, तो कितनी मेमोरी लिखोगे? यहाँ पे 2 लिख देना, और जो 64 बिट मशीन पे काम करते हैं वो 4 लिख देंगे। यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखोगे वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, या तो इंटीजर वेरिएबल या इंटीजर वैल्यू। या तो SIZD लिख रहे हो तो फिर ये इंटीजर वेरिएबल होना चाहिए, या यहाँ पे एक संख्या लिखी जा सकती है, काउंट लिखा जा सकता है। यू कैन राइट अ न्यूमरल हियर, 10, 20, 30, 40, 250, जितना मर्जी लिख दो। 250 लिखने का मतलब है 250 बाइट्स, 100 लिखने का मतलब है 100 बाइट्स। ठीक है, तो कितनी मेमोरी चाहते हो मैलॉक से रिजर्व करना, वो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। तो इट विल एलोकेट अ ब्लॉक, वो एक ब्लॉक एलोकेट कर देगा आपके लिए, जिसमें कितनी बाइट्स होंगी? SIZD बाइट्स, एंड विल रिटर्न अ पॉइंटर टू द ब्लॉक, और आपको जगह बता देगा कहाँ पे रिजर्व करके आया, उसका पॉइंटर आपको लौटा देगा, जनरेट पॉइंटर। और इन केस मेमोरी में जगह ना हो, मेमोरी राइट प्रोटेक्टेड हो, मेमोरी करप्ट हो, उन सब केसेस में क्या रिटर्न होगा? नल। If unable to allocate a block, it shall return null। तो वर्ड स्टार में क्या रिटर्न हो जाएगा? नल। मतलब आप याद करो, आप डेटा स्ट्रक्चर्स में लिखते थे इफ नोड स्टार से लौटाई गई चीज जो आता था उसमें लिखते थे इफ इट इज डबल इक्वल टू नल, तो हम लिख देते थे ओवरफ्लो अकर्ड, मेमोरी कैन नॉट बी रिजर्व। ऐसा हम करते थे, नल वैल्यू को चेक करते थे। नल एक मैक्रो है जो stdio.h में डिफाइंड है। ओके, नाउ लेट अस look at this calloc function and try to understand the difference between malloc and calloc। बड़ा सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको। देखो क्या करना है, मुझे 10 कमरे बुक करने हैं, 10 कमरे बुक करने हैं तो मैलॉक से हो जाएंगे वो बुक। ठीक है, मगर अब मेरे घर में फंक्शन जो था ना उसमें जो 10 कमरे बुक होने थे, मेरे पास 2 अलग फैमिलीज आने वाली हैं। इन वन फैमिली आई हैव 10 पीपल, इन अदर फैमिली आई हैव 8 पीपल। एक में 10 है एक में 8 है, ऐसा भी हो सकता है। या और सिंपल कर देता हूँ, मान लो 2 फैमिलीज आने वाली हैं, दोनों में 10-10 लोग हैं। ठीक है, तो मैलॉक से मैंने पहली बार में 10 कमरे बुक किए, जैसे ही बुकिंग करके हटा मुझे फोन आ गया कि आई हैव 10 मोर गेस्ट कमिंग अप। देखो शुरुआत में ही फोन आता तो मैं 20 बुक कर देता आप कहोगे, मगर ऐसा भी तो रियल लाइफ में होता है ना कि फोन एक बुकिंग करने के बाद फोन आए कि जी और लोग आ रहे हैं, है ना। तो से फॉर एग्जाम्पल यू कॉल्ड मैलॉक एंड यू हैव ऑलरेडी बुक 10 रूम्स, यू नीड अनदर 10 रूम्स, तो आप क्या करोगे? मैलॉक को दोबारा कॉल करोगे, फिर से 10 कमरे बुक कर सकते हो। नाउ इफ यू नीड मोर 15 रूम्स, कॉल मैलॉक अगेन एंड बुक अदर 15 रूम्स। तो मैलॉक से ये काम आप 3 बार में कॉल करके कर रहे हो, 10, 10 एंड 15। मगर अगर आपको मैं ये बोलूं 10-10 बाइट के, 10-10 बाइट के 6 ब्लॉक्स बुक कर दो, मैंने क्या बोला? कैलॉक को ध्यान से देखिए, ये है बाइट साइज, एक चंक का साइज। मैंने कहा 10 बाइट्स वाले ऐसे कितने चंक्स बुक होने हैं? 3 चंक्स। तो मैं क्या लिखूंगा? 3,10 मीन्स 3 ब्लॉक्स ऑफ साइज 10 बाइट्स ईच। तो कैलॉक क्या काम करता है? एक बार में मल्टीपल चंक्स ऑफ मेमोरी बुक कर देता है आपके लिए। इट एलोकेट्स चंक ऑफ मेमोरी ऑफ साइज, कितना बड़ा साइज होगा?
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने चंक्स बनाने हैं, इनटू साइज, उतनी बाइट्स बुक हो जाएंगी। और एक खास चीज, मेलॉक जो बुकिंग करके आता है उसमें बाय डिफॉल्ट उन कमरों के अंदर गार्बेज होता है, मगर जब कैलॉक बुकिंग करता है तो वहां पे क्या डाल देता है, वहां पे वैल्यू 0 रख देता है। दोनों का डिफरेंस फिर से समझो। मेलॉक रिजर्व्स वन चंक ऑफ मेमोरी एट अ टाइम, बट कैलॉक कैन रिजर्व मल्टीपल सच चंक्स। इतना सा फर्क है। चलिए अब देखते हैं रीअलॉक। आप मेमोरी कब रिजर्व कर रहे हो, रन टाइम पे, ठीक है। रन टाइम पे से फॉर एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी रिजर्व्ड 10 rooms using malloc, and after reserving 10 rooms I got to know that I need 2 more bytes। 10 बाइट कम है, मुझे 2 और बाइट्स की जरूरत है, तो रीएलोकेशन की जरूरत है। तो रीएलोकेशन क्या कहता है, रीएलोकेशन कहता है पुराना वाला पॉइंटर मुझे बताओ कहाँ है, पुरानी मेमोरी जो 10 बाइट की रिजर्व करके आए थे उसका पता दे दो मुझे। नया साइज क्या है वो बताओ, पुरानी मेमोरी जो थी वो, और नया साइज क्या चाहिए वो। ये दोनों चीजें मैं बताऊंगा, वो नई मेमोरी फिर से बड़ी सी बुक कर देगा मेरे लिए और मुझे उसका पता लौटा देगा जो फिर से जनरेट होगा। गिवन अ प्रीवियसली एलोकेटेड ब्लॉक स्टार्टिंग एट पीटीआर, चेंज द ब्लॉक साइज टू न्यू साइज, रिटर्न द पॉइंटर टू द रीसाइज ब्लॉक। these 2 points are important, just look at them। अगर आप ब्लॉक साइज बढ़ाते हैं, इफ यू इंक्रीज द ब्लॉक साइज, कंटेंट्स ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मे बी कॉपीड टू कंप्लीटली डिफरेंट रीजन। आपने 10 बाइट थी, अब आपने कहा मुझे 12 कर दो, तो अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा था सर क्या कंटिन्यूसली एलोकेशन होता है, होता है, मगर इस 10 बाइट के बाद जो 11वीं बाइट थी अगर वो खाली नहीं है तो क्या होगा, आपको पूरी की पूरी 12 बाइट्स किसी नई जगह पे दी जाएंगी और आपकी पिछली 10 बाइट्स का डाटा उन जगह पे कॉपी कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 10 कमरे आपको मिले थे, अब आप 2 कमरे एक्स्ट्रा मांग रहे हो, वो जरूरी तो नहीं है एडजेसेंट अवेलेबल हो 2 कमरे, हो सकता है रूम नंबर 10 के बाद जो एडजेसेंट रूम था वो ऑलरेडी बुक्ड है, वो आपको नहीं दिया जा सकता, तो स्टैगर्ड मेमोरी आपको नहीं मिलेगी। व्हाट कंप्यूटर नीड्स टू डू इज द कंप्यूटर विल कॉपी योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 10 बाइट्स टू अ न्यू लोकेशन which will be large enough to accommodate 12 bytes। Second point, in this case the pointer return will be different from the pointer argument earlier। और पुराना पता आप भूल जाइए, वो खो जाएगा आपका, पुरानी 10 बाइट्स पे अब आपका कोई क्लेम नहीं है। अगर जगह कम, आपने ज़्यादा जगह मांगी है और नई जगह पे रिलोकेशन हो गया है, तो अब जो नया पता है वही आपके काम का है। मतलब पिछला वाला जो 10 बाइट का एड्रेस था वो भूल जाइए, आपका डाटा इज अवेलेबल एट न्यू लोकेशन इन न्यू 10 rooms प्लस एडिशनल 2 rooms। Is this understood or not? Please let me know। Now let us look at a new function, that is once we are done with allocation we'll feel like deallocating the memory also, because I made this thing very clear। Whenever you do dynamic memory management, whenever you allocate memory at runtime, it is your responsibility to free up that memory। जब भी आप रन टाइम पे अलग से मेमोरी एलोकेट करेंगे तो उस मेमोरी को फ्री करना आपकी ड्यूटी होगा, ना कि कंपाइलर की ड्यूटी, ठीक है। तो उस मेमोरी को फ्री कराना आपकी जिम्मेवारी है। अब सवाल यह है सर फ्री कैसे कराएंगे, हाउ विल बी फ्री द मेमोरी, विच पर्टिकुलर फंक्शन विल बी यूजिंग फॉर फ्रीइंग दिस मेमोरी। सो द फंक्शन इज नेम्ड एज फ्री। ये फ्री नाम का फंक्शन आप यूज करेंगे, इसके अंदर क्या भेजेंगे, अपना पॉइंटर। याद कीजिए अगर आपने मेमोरी मैलॉक से बनाई थी तो आपको मैलॉक ने एक पॉइंटर लौटाया था, जेनरिक पॉइंटर, जिसको टाइपकास्ट करके आपने अपने पॉइंटर में रिसीव किया। मान लीजिए आपके पॉइंटर का नाम पीटीआर है जो उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है और आप उसी मेमोरी को फ्री करना चाहते हैं, तो आपका स्टेटमेंट होगा फ्री राउंड ब्रैकेट्स पीटीआर। आप उस पॉइंटर को डिलीट कर देंगे। लेट अस लुक दिस इन द एग्जाम्पल इफ इट इज देयर। फ्री इसमें कहीं यूज करके दिखाया नहीं है, जस्ट अ मिनट। अभी इन स्लाइड्स पे बेटा अगर आप देख पा रहे हैं तो फ्री का यूज नहीं दिखाया गया है, मगर आपको करना क्या है, अगर आप मेरे कर्सर मूवमेंट को देख पा रहे हैं तो जस्ट प्रायर टू दिस गेट ch you should always write free IPTR, free FPTR, free CPTR, because IPTR, FPTR and CPTR were the pointers which you created and were pointing to some memory allocated dynamically। ये जो 3 पॉइंटर्स हैं ये कहाँ बने हैं आपके प्रोग्राम में, मैलॉक ने जो मेमोरी बनाई थी
उस मेमोरी का पता IPTR, FPTR और CPTR को दिया हुआ है। तो आपकी ड्यूटी क्या है कि जब आपका काम खत्म हो जाए, once you are done with the work, it is your duty to free up that memory। क्योंकि जो मेमोरी डायनेमिकली बनती है वो अपने आप नहीं खाली होती है, उसको खाली कराने के लिए फ्री फंक्शन को कॉल करना आपकी ड्यूटी होता है। इज दिस अंडरस्टूड? सो व्हाट वी नीड टू डू before get ch, once you are done with the pointers, you need to write a statement here. I'll try to show you the statement how you'll be writing it। आपको क्या लिखना होगा? free, within round brackets I will write the name of the pointer which I wish to free up। इसको छोटे अक्षर में करना चाहिए। क्या हो गया? एक सेकंड रुको, अभी लो। ठीक है, the way I have freed up IPTR, similarly you need to copy paste this thing। you need to write free CPTR, free FPTR। three statements will be there to free up these 3 pointers। so hope this thing is clear to all। now let us try to understand what is there in this example। so on the slide, this particular program will teach us how to use malloc function for creating memory for one integer, for one float, and for one character variable। just read out the comments shown in bold। यहाँ जो create memory dynamically to store single integer, single float and single char variable लिखा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। so if you pay attention, if you look at the 3 statements shown in red color, 3 statements shown in red color, the first statement is used for allocating memory for one integer variable। the second statement, it is being used for allocating memory for one float type, and third one is used for one character type variable। now let us look at the syntax। malloc function asks only one thing, malloc function demands only one thing। I'll explain you with the help of a comment here। IPTR equals to round bracket int star malloc malloc, और मैं यहाँ पे लिख दूँ 2। so the statement shown here in comments, ये जो यहाँ पे दिखाया है, ये जो कमेंट्स में स्टेटमेंट लिखा है, ये क्या कर रहा है? ये 2 बाइट मेमोरी मेरे लिए रिजर्व करेगा। 2 बाइट क्यों? क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं वी आर वर्किंग ऑन अ 16-bit मशीन, एंड ऑन अ 16-bit मशीन 2 बाइट्स आर सफिशिएंट एनफ टू स्टोर वन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, फिर कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर फिर साइज ऑफ क्यों लिखा था नीचे, सीधे यहाँ 2 लिख देते। बेटा जो कोड आप बनाते हैं वो कोड आपका हमेशा 16-bit मशीन पे ही एग्जीक्यूट कराना है, ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी आप अपना प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे, एंड वी शुड नेवर फॉरगेट दैट C++ इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। इंटीजर ऑन अ 16-bit मशीन डिमांड्स 2 बाइट, एंड इंटीजर ऑन 32-bit मशीन और 64-bit मशीन डिमांड्स मोर मेमोरी। ठीक है, तो हाउ कैन यू बी सो श्योर कि इंटीजर 2 ही लेगा? So it is always advisable to use the second statement wherein I am asking my compiler to do some computation। मैं उसको क्या कह रहा हूं? साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करो और इंट को जिस मशीन पे तुम रन हो रहे हो उस मशीन पे इंट को कितनी मेमोरी चाहिए कैलकुलेट कर लो और बस उतनी ही मेरे लिए रिजर्व कर दो। तो मैं साइज ऑफ को यूज कर रहा हूं। फिर malloc लिखा हुआ है, malloc तो नाम है फंक्शन का, नाम आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है इंट स्टार। we should recall things। malloc returns a generic pointer, but for what purpose you are reserving this memory? क्या रखना चाहते हैं यहाँ पे आप? integer। so this generic pointer needs to be properly typecasted। अगर आप ये टाइपकास्टिंग नहीं करेंगे, आप ऐसा लिखेंगे, ये देखिए ऐसा। मान लीजिए आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया, तो आप मुझे बताओ malloc क्या रिटर्न करता है? एक जेनरिक पॉइंटर, और आप उसको एक्सेप्ट किस में कर रहे हैं? IPTR में। IPTR का टाइप क्या है? इंटीजर। क्या इंटीजर पॉइंटर जेनरिक पॉइंटर के कंटेंट्स को रिसीव कर सकता है? नहीं, एरर आ जाएगा। इंटीजर पॉइंटर कैन नॉट रिसीव जेनरिक पॉइंटर। सो वी नीड टू टाइपकास्ट द वैल्यू एप्रोप्रिएटली। हमें उसको पहले टाइपकास्ट करना होगा, फिर IPTR में देना होगा, और ऐसा हमने तीनों स्टेटमेंट्स में किया। Once these 3 statements are over,
their execution gets over. So what we can expect? Space for one integer, space for one float, and space for one character value has been reserved successfully. Fine. And IPTR is pointing to which area of the memory where the space has been fixed. जहां पे allocation हुआ है IPTR उस जगह को point कर रहा है. FPTR is pointing to the location where you can now store a float value. Similarly, CPTR is pointing to the location where you can store a character. तो जब ये उन जगहों को पॉइंट कर रहे हैं तो क्यों ना उस जगह पे पहुंच के अब अपनी मनचाही वैल्यूज को हम स्टोर भी कर दें. हमने मेमोरी रिजर्व किस लिए की थी? हम एक इंटीजर रखना चाहते थे, एक फ्लोट और एक कैरेक्टर रखना चाहते थे. सो लेट अस गो एंड स्टोर द वैल्यूज एट अप्रोप्रिएट प्लेस. सो say for example the integer value that I feel like storing is 100. मैं एक integer value जो रखना चाहता हूँ वो क्या रखना चाहता हूँ 100. तो what I will write star IPTR equal to 100. ठीक है. अब कोई स्टूडेंट कह सकता है सर स्टार IPTR क्यों लिखा, सिर्फ IPTR लिख देंगे तो क्या होगा? तो बेटा IPTR क्या होता है? IPTR एक पॉइंटर होता है. अगर आप पॉइंटर में 100 डालेंगे तो पॉइंटर क्या सोचेगा, उसको क्या मिला? पॉइंटर को डायरेक्ट पॉइंटर लिखने से वो सोचेगा मुझे कोई एड्रेस मिला. तो क्या 100 कोई एड्रेस है या वैल्यू है? 100 इज अ वैल्यू. तो 100 को IPTR में डालोगे मतलब IPTR को कहोगे 100 वाला पता बता रहा हूं वहां पहुंच जा. तो IPTR विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन दैट हैज एड्रेस 100. वहां तो गार्बेज पड़ा होगा ना. तो 100 इज नॉट एन एड्रेस. 100 is actually the value that I feel like storing. So you have to put a star here because star operator का नाम क्या होता है? Value at the address. It will be dealing with the value at the address stored in IPTR. IPTR में जो पता है उस जगह पे पहुंचाएगा स्टार, और उस जगह पे आप क्या रख रहे हो 100. इसी तरह से FPTR पे आप क्या रख रहे हो 3.14. सिमिलरली इन करेक्टर पॉइंटर आई एम स्टोरिंग अ करेक्टर A. जब ये तीनों चीजें स्टोर हो जाएं तो हम कैसे मान लें स्टोर हो गई? हम प्रिंट एफ करके देख लेते हैं. लेट अस प्रिंट थिंग्स. इंटीजर वैल्यू हैज %d I स्टार IPTR स्टार FPTR स्टार CPTR. ये प्रिंटिंग आप करोगे तो आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसी वैल्यूज मिलेंगी. आपका आउटपुट ये आएगा. वो कहेगा इंटीजर वेरिएबल हैज वैल्यू 100, फ्लोट वेरिएबल हैज वैल्यू 3.14 एंड करेक्टर वेरिएबल, करेक्टर की स्पेलिंग गलत है प्लीज पार्डन मी फॉर दिस, करेक्टर वेरिएबल हैज वैल्यू A. ठीक है. कोई डाउट किसी को इस कोड में? तो मेलॉक कैलॉक से एक वेरिएबल के लिए मेमोरी रिजर्व करानी हो तो कैसे कराते हैं वो सिखाया. माय जॉब इज टू टीच यू हाउ मेलॉक वर्क. एक सिंगल वेरिएबल के लिए कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर जब एक ही वेरिएबल बनाना है तो इतना लंबा काम हम क्यों करें, हम तो यहाँ इन टेक्स्ट इक्वल टू 100 लिख देंगे. तो बेटा वो तो आप कर ही सकते हैं, मगर आपको भी सीखना क्या है? डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट. कंपाइल टाइम मैनेजमेंट तो अपने आप हो ही जाता है, वो सीखना क्या है वो तो आप जानते हैं. ठीक है. माई जॉब इज टू टीच यू डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट. तो आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर. ये सारा कुछ सी में आपने पढ़ा था, मैंने तो आपको रिकैप दिया है ताकि जो भूल गए हैं या नहीं पढ़ा था तो ध्यान से देखें. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अप टिल दिस पॉइंट प्लीज आस्क, एल्स आई विल मूव टू नेक्स्ट कोड. चलिए क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं. Now, this particular program, in this program, I will be making use of malloc function for creating arrays. पिछले प्रोग्राम में सिंगल वेरिएबल, इस प्रोग्राम में एरे, पूरा का पूरा एरे बनाएंगे. एक एरे जिसमें 5 कमरे होंगे इंटीजर्स के लिए, दूसरा एरे जिसमें 5 कमरे होंगे फ्लोट वैल्यूज के लिए, थर्ड एरे विथ 5 रूम्स फॉर कैरेक्टर वैल्यूज. ठीक है. सो अगेन what I need is I need 3 pointers, one to deal with integer values, other to deal with float type values, and third with character type values. चलिए. So let us look at the first statement shown here. malloc नाम वही रहेगा. मेमोरी कितनी चाहिए भाई? अगर 5 कमरों वाला इंटीजर एरे बनाना है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे malloc के राउंड ब्रैकेट्स में 10 लिख सकते हो, क्योंकि एक 2 बाइट लेता है तो 5 कितनी लेंगे 10. मगर फिर बात वही आती है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है. ठीक है. तो ये प्रिडिक्शंस ना करें कि इंटीजर 2 बाइट लेता है. वरुण प्लीज आस्क अ क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. यू कैन पुट योर क्वेश्चन हियर. यस प्लीज. Varun, you're not audible, beta. Reconnect your audio device. Unplug and then replug. Sir,
ब्रेक हो रहा है वॉइस। वरुण की आवाज किसी को सुनाई दे रही है क्या साफ? वरुण की आवाज नहीं आ रही है। वरुण, टाइप योर क्वेश्चन। No problem, Varun. You can tell your question to your friends even and they can ask on your behalf. You can do that. Or you can put your question here in the chat window. चलो खैर, एनीवे वरुण आप बाद में पूछ लेना बेटा, फिर क्या कहें। सर जी सर ये एफ फ्लैश का क्या फंक्शन होता है? अच्छा, वो अभी आ रहे हैं नीचे, अभी बताते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। कौन पूछ रहा था ये क्वेश्चन? कुशाग्र सर। ओके कुशाग्र, मैं अभी समझाता हूँ बेटा। धीरे ओके धीरे नीचे आते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल ये चीज सबको क्लियर होगी। 5 इंटू साइज ऑफ इन मतलब 10 बाइट्स रिजर्व हो जाएगी। 5 इंटू साइज ऑफ फ्लोट, इफ फ्लोट टेक्स 4 बाइट तो 20 बाइट्स रिजर्व होंगी। और यहाँ पे 5 बाइट्स फॉर करेक्टर रिजर्व होंगे। ये रैम में अलग अलग ठिकानों पे जो मेमोरी रिजर्व हुई है, उन सब के एड्रेसेस आईपीटीआर, एफपीटीआर और सीपीटीआर में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें उन मेमोरी लोकेशंस के लिए वैल्यू को रीड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, उन मेमोरी लोकेशंस के लिए वैल्यू रीड करनी है। मतलब इंटीजर्स के लिए 5 तो इंटीजर्स होंगे, 5 फ्लोट वैल्यूज हैं, 5 करेक्टर वैल्यूज हैं। ऑल वैल्यूज वी नीड टू रीड इन। तो अगर ध्यान से देखो तो 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी 15 वैल्यूज रीड होने वाली हैं। तो इट इज़ बेटर टू यूज लूप, अदरवाइज बहुत सारे वो स्कैनफ 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 आते चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, हर एक के लिए क्योंकि 5 चीज़ें यूज होनी है, तो मैंने एक फॉर लूप लगा दिया जो 0 से 4 चलेगा। सो लेट अस मेक यूज ऑफ लूप, क्योंकि हर चीज 5 बार होनी है। तो हमने क्या किया, एक आई वेरिएबल जो डिक्लेयर किया था, कैन वी स्टोर वैल्यू इन ब्रैकेट्स। कौन से ब्रैकेट्स की आप बात कर रहे हैं? यहाँ पे ब्रैकेट्स ना बेटा। अच्छा, वरुण का शायद क्वेश्चन ये है कि एरे के केस में स्क्वायर ब्रैकेट्स होते थे। ठीक है, मुझे ये जानना है बेटा कि एरे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है ना, वो कंपाइल टाइम एलोकेशन के लिए होता है। कंपाइल टाइम के दौरान अगर कंपाइलर को कहीं पे भी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आते हैं, तो वो क्या करता है, उन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो बीच में वैल्यू लिखी होती है, उस वैल्यू को पढ़ता है और उतनी मेमोरी कंपाइल टाइम पे बुक कर देता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये एलोकेशन कब होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला एलोकेशन कब होता है, ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। मगर वो कंपाइल टाइम वाला एलोकेशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एरे में अगर आपने एक बार 5 लिख दिया तो फिर वो 6 नहीं हो सकता, वो 7 नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आई बात? तो अभी क्या है, यहाँ पे देखो कहीं पे भी स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, बिकॉज malloc never uses square brackets. But what it does is it does contiguous memory allocation. ये क्या काम करेगा, हमारे लिए जितने कमरे हमको चाहिए 1 बाइट ईच ऑफ साइज 1 बाइट ईच, दैट मैनी रूम्स इट विल एलोकेट फॉर अस। तो एरे क्या करता था, एरे में भी तो यही होता था, कमरे ही तो होते थे, ब्लॉक्स होते थे 1 बाइट ईच, सबका साइज 1 बाइट होता था। वो स्क्वायर नोटेशन से चलता है कोड, तो जब स्क्वायर नोटेशन से चलता है तो मेमोरी कब फिक्स हो जाती है, कंपाइल टाइम पे। अब इस कोड में कहीं पे भी वो नहीं है, स्क्वायर नोटेशंस कहीं यूज नहीं हुए हैं, मेलॉक के साथ वो यूज भी नहीं होते हैं। मेलॉक के साथ में राउंड ब्रैकेट्स यूज होंगे, क्योंकि मेलॉक इज अ फंक्शन। और मेलॉक के अंदर आपने लिखा 5 इंटू साइज ऑफ इंट, अगर साइज ऑफ इंट 2 बाइट हुआ तो 5 इंटू 2 यानी 10 बाइट्स विल बी एलोकेटेड फॉर इंटीजर एरे। अब मैं इसको एरे क्यों बोल रहा हूँ, इंग्लिश वर्ड जो एरे है उसका क्या मतलब है। एरे ऐसा कुछ नहीं है कि एरे जो है वो प्रोग्रामिंग की दुनिया का वर्ड है। एरे मतलब एक तरीके से एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को एरे बोल सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है आपने, 1 डायमेंशनल एरे, है ना। मैट्रिक्स बोलते हैं 1D वाली मैट्रिक्स, सिंगल रो वाली, सिंगल कॉलम वाली। तो ये जो एरे सर वर्ड है, ये अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आइटम्स हैं वो क्या है, मेमोरी ब्लॉक्स। तो मैंने एरे वर्ड जो यूज किया, तो एरे से हमेशा दिमाग में स्क्वायर ब्रैकेट आए ऐसा नहीं करना है। कंपाइलर भी ऐसा नहीं करता, कंपाइलर एरे के नाम पे स्क्वायर ब्रैकेट्स देखता है तो वो कंपाइल टाइम एलोकेशन करता है, मगर जब स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, उसकी जगह मैलॉक या कैलॉक होता है, तब भी वो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है। और उस कंटिग्यूअस एलोकेटेड मेमोरी को मैं
इंग्लिश वर्ड एरे बोल सकता हूँ, ठीक है, मगर कहीं पे भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करूंगा। तो नाउ लेट अस लुक एट द लूप। वी हैव स्टार्टेड विद वैल्यू 0, विल मूव अप टिल वैल्यू 4 एंड व्हाइल मूविंग वी विल कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ i। मतलब ये लूप 5 बार चलेगा। जब ये पहली बार चलेगा तो क्या मैसेज देगा? एंटर एन इंटीजर फॉलोड बाय अ फ्लोट देन फॉलोड बाय अ कैरेक्टर वैल्यू। तो हमने यहाँ पे क्या किया? स्कैनिंग शुरू कर दी। इंटीजर्स को स्कैन करना था, सी में आप क्या लिखते थे? %d, ठीक है। अगर ये काम आप, ये मैलॉक कैलॉक फंक्शन ऐसा नहीं है कि सी प्लस प्लस में नहीं चलेंगे, सी प्लस प्लस में भी चलेंगे, ठीक है। मगर हम सी प्लस प्लस में इनसे बेटर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है तो हम इन्हें यूज़ नहीं करते हैं। मगर अगर अच्छे से डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट समझना है तो तरीका ये कहता है सी से शुरू हो जाओ और सी प्लस प्लस तक आओ, पीछे से लेके आगे की तरफ आओगे तो बीच में कोई चेन जो होती है वो टूटेगी नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये मैलॉक कैलॉक पढ़ा रहा हूँ। तो स्कैनिंग कर रहे हैं यानी सी वाला फंक्शन है ये। % फॉर इंटीजर्स, वी हैव स्कैन्ड इन अ वैल्यू, मतलब IPTR जिस एरे को पॉइंट कर रहा था, IPTR वाज पॉइंटिंग टू कंटिग्यूसली एलोकेटेड रूम्स। उन रूम्स को जो ये पॉइंट कर रहा है उसके पहले कमरे की वैल्यू रीड हो गई, तो पॉइंटर को अगले कमरे तक पहुंचाना है या नहीं? तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंक्रीमेंट IPTR। IPTR ओरिजिनली क्या कर रहा था? सबसे पहले कमरे को पॉइंट कर रहा था, उसकी वैल्यू रीडिंग हो गई है। तो अब आप IPTR को क्या ले जाओगे? IPTR को एडवांस करके अगले रूम पे पॉइंट कराओगे, ठीक है। इंटीजर वाला काम तो हो गया। नाउ लेट अस रीड अ फ्लोट वैल्यू। float value is read with %f format specifier। once you are done reading the float value, पहली float value भी रीड हो गई तो FPTR भी बढ़ा दो, पहली करेक्टर वैल्यू रीड हो गई तो CPTR भी बढ़ा दो, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा? तीनों एरे के, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, all three arrays, the first room is read in, we have read in the value for first room of integer, for first room of float array and for first room of character array। ये काम तो हो गया है, पॉइंटर भी आगे बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि सर ये f फ्लश क्या चीज है? देखो क्या होता है, स्कैनफ में बेटा बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। स्कैनफ क्या करता है? स्कैनफ में लिमिटेशंस क्या है कि वो एक इंटीजर वैल्यू को रीड करने के बाद फिर जब उसे फ्लोट वैल्यू रीड कराओ तो वो गड़बड़ करता है, वो सही से परफॉर्मिंग नहीं करेगा काम अपना। क्या होगा? आपने देखा होगा कि प्रोग्राम में क्या करेगा, पहली वैल्यू रीड कर लेगा, बाकी रीड ही नहीं की और आउटपुट दे दिया। जो बच्चे प्रोग्रामिंग करते चले आ रहे हैं उन्होंने ऐसा एरर अक्सर नोटिस किया होगा। योर सिस्टम, योर लूप विल रीड फर्स्ट वैल्यू एंड इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल सब्सिक्वेंट वैल्यूज इट विल एब्रप्टली टर्मिनेट एंड विल शो यू द आउटपुट। आप कहोगे यार बाकी वैल्यूज तो मांगी ही नहीं मुझसे, ये क्या हो गया? क्योंकि स्कैनफ क्या चीज़ है? स्कैनफ एक बफर से जुड़ा हुआ है, कीबोर्ड के बफर से। वो स्कैनिंग करता है कीबोर्ड से क्या वैल्यू आई उसके बफर में। उसको पहले इंटीजर वैल्यू मिल गई, जैसे इंटीजर वैल्यू मिल गई उसने फ्लोट की रीडिंग करनी थी, तो स्कैनफ का बफर अगर खाली नहीं होगा ना तो बफर में उसको पहले से पड़ी हुई कोई वैल्यू नजर आएगी, तो कहेगा वैल्यू तो पहले से ही पड़ी हुई है, वो रीडिंग नहीं करेगा, प्री मैच्योरली टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, एफ फ्लश द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। एसटीडी इन क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। तो मुझे बताओ कौन सी डिवाइस स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, एफ फ्लश फंक्शन से कह रहे हैं इंटीजर वैल्यू को रीड करने के बाद में कीबोर्ड वाले बफर को फ्लश आउट कर दीजिए। प्लीज फ्लश आउट द बफर एसोसिएटेड विद अवर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। वो उसे फ्लश कर देगा। फ्लश करने के बाद अगली वैल्यू आएगी FPTR, उसको प्रॉपरली रीड करेगा, फिर हम फ्लश कर देंगे, फिर हम कैरेक्टर रीड करेंगे, उसको भी फ्लश कर देंगे। ये फ्लश करने का काम अगर आप नहीं करोगे तो आपको अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका लूप एक वैल्यू तो रीड करता है, बाकी पूछते ही नहीं और बंद हो जाता है। किसी को आई है कभी ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में? एनी स्टूडेंट हु एनकाउंटर्ड सच इशू? Yes, sir, I came across it once. So I think this code is clear to all. Once you are done reading all 5 values, पहले एक एक कमरा रीड हुआ, फिर लूप दोबारा चलेगा, दूसरा कमरा रीड हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। जब पांचों कमरे रीड हो जाएंगे तो मुझे ये बताओ, आपका पॉइंटर, वरुण क्वेश्चन बेटा पूछ सकते हो आप कभी भी, आपका पॉइंटर एडवांस हो रहा था तो लास्ट में पॉइंटर कहाँ पहुंच जाएगा? पॉइंटर पहुंच जाएगा आखिर में। No, Varun is asking कि can we use F flush instead of free? No.
एफ फ्लश का काम है कीबोर्ड के बफर को साफ करना, फ्री का काम है IPTR को डिलीट करना, FPTR को डिलीट करना, CPTR को डिलीट करना। अभी मुझे जरा ये बताओ कि इस लूप को चलने में कुछ तो सेकंड्स लगेंगे ना, एक आधा सेकंड लग सकता है ना इसको एग्जीक्यूट होने में, ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि आप भी तो स्लो हो, आप भी तो वैल्यूज टाइप करोगे धीरे धीरे। मतलब 5 वैल्यू इंटीजर, 5 फ्लोट और 5 करेक्टर वैल्यूज को एंटर करना, रीड करना, डोंट यू थिंक एटलीस्ट 10-15 सेकंड्स यू विल नीड? यस इतना तो सर, समय चाहिए ही आपको, है ना? यस अब सर। लेकिन जब आपका काम खत्म हो जाए और आप यहाँ लिखोगे फ्री IPTR, फ्री FPTR, फ्री CPTR, तो क्या होगा? खट 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 3 सेकंड में सब गया। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझो। आपको मैं कहूँ कि मेरे पास एक पेन ड्राइव में मूवी है, प्लीज कॉपी द मूवी ऑन टू योर ड्राइव, so this copy operation will definitely take some time, maybe depending on the RAM and your CPU architecture at least 2-3 minutes लग जाएंगे, क्योंकि आजकल हाई डेफिनेशन मूवीज हैं, 1-2 GB की तो होंगी, तो ट्रांसफर करना 2 GB डाटा ऑन योर हार्ड ड्राइव विल डेफिनेटली टेक सम टाइम, है ना? मान लीजिए 4 मिनट लगे। अब एक बार आपके हार्ड ड्राइव पे मूवी आ गई, मैं कहूँ अभी नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर दो, तो आप क्या करोगे? अपनी मूवी के उस आइकन पे राइट क्लिक करके डिलीट मारोगे, फट से डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने में तो समय नहीं लगा ना, कॉपी करने में समय लगा, डिलीट होने में तो 1 सेकंड में डिलीट हो गया। तो कभी सोचा इतना फास्ट कैसे हो गया ये? मैं बताता हूँ क्या हो गया। आपकी मूवी तो अभी भी हार्ड डिस्क पे है, सिर्फ जो डिलीट हुआ है वो उस मूवी का पॉइंटर डिलीट हो गया। मूवी स्टिल एग्जिस्ट ऑन द हार्ड ड्राइव बट यू कैनॉट रिकवर, you cannot replay it back at memory. Job of fflush is to clean the buffer associated with keyboard. Okay, so आगे चलते हैं। देखिए, अब क्योंकि हमारे पॉइंटर्स रीडिंग करते हुए प्लस प्लस हो रहे थे और वो आगे बढ़ते जा रहे थे और लास्ट कमरे को पार कर गए होंगे 5 रीडिंग के बाद, तो सबसे पहले तो 5 बार अपने पॉइंटर्स को पीछे लाओ। किसी को इस लूप में कोई डाउट है क्या? आई एम रिवाइंडिंग द पॉइंटर्स बैक बाय 5 लोकेशंस बिकॉज while I was reading data, I was incrementing the pointers. तो पॉइंटर तो आगे भाग गया था ना आखिरी कमरे पे, उसको शुरुआती कमरे पे फिर लाना होगा मुझे, क्योंकि मुझे फिर से शुरू से कुछ काम शुरू करना है। तो आई नीड टू रिवाइंड माई पॉइंटर्स बैक। वंस रिवाइंड इज ओवर, तो मैंने इसको रिवाइंड क्यों किया? क्योंकि जो डाटा रीड हो गया मुझे आपको डिस्प्ले कराना है। मेरा पॉइंटर तो आखिर यहाँ से चालू हुआ, फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे चला गया। अब मुझे डाटा डिस्प्ले करना है तो मुझे पीछे 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 5 बार आगे गया हूँ तो 5 बार पीछे आऊँगा। आई नीड टू रिवाइंड माई पॉइंटर बैक। तो ये रिवाइंड वाला काम किया मैंने। उसके बाद एक दोबारा लूप लगाया एंड आई हैव ट्राइड टू डिस्प्ले दी वैल्यूज ऑन द स्क्रीन। एक वैल्यू दिखाऊंगा इंटीजर, एक फ्लोट और एक कैरेक्टर, फिर तीनों पॉइंटर बढ़ा दूंगा, अगले कमरे पे पहुंच जाएंगे। फिर अगली अगली वैल्यू दिखाऊंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, वैल्यू दिखाता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा, वैल्यू दिखाता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। आपको ये आउटपुट देखने को मिलेगा। आपका आउटपुट पहले आपसे एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक कैरेक्टर मांग रहा था, आपने 1, 1.0 और ए डाला, फिर आपने 2, 2.0 और बी डाला, 3, 3.0 और सी डाला, ऐसे आप करते चले गए। फिर ये जो खाली जगह दिख रही है थोड़ी सी, यहाँ पे पॉइंटर हमारा रिवाइंड हुआ। रिवाइंड होने के बाद में फिर से डिस्प्ले शुरू कर दिया उसने, और जो पीछे वैल्यूज रीड की हैं उनको वापस स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। तो आई होप दिस कोड has I have successfully explained you how to declare pointer array using dynamic memory, how to deal with them, manipulating the memory. ये सारी चीज़ें इस एग्जाम्पल में मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए, बट स्टिल इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज आस्क। If not now, then you can study this topic later on once you get your home and ask questions in the next lecture also. So, any questions, anything that is bothering you, नहीं समझ में आया हो, कुछ भी पूछना हो? Else, let us look at another topic. Okay. Same allocation of memory for 5 integers and 5 floats and 5 characters is shown here with the help of calloc. तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या यूज़ किया है? malloc की जगह calloc। बाकी पूरा कोड हूबहू वही है, जो पिछला कोड था और जो ये कोड है, दोनों में फ़र्क आ गया malloc से calloc। आउटपुट में क्या फ़र्क आएगा? अगर मेमोरी को रीड नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 उठा रहा है, कैरेक्टर के लिए स्पेस उठाएगा, सिंगल स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट। इंटीजर 0, फ्लोट 0.0, कैरेक्टर सिंगल स्पेस। तो कैलॉक का मैंने आपको बताया था, कैलॉक मेलॉक से अलग होता है। कैलॉक कैन रिजर्व मल्टीपल चंक्स ऑफ मेमोरी, बट द मेन डिफरेंस इज द मेमोरी रिजर्व बाय कैलॉक इज इनिशियलाइज्ड टू सम
legal value. In case of integers it is 0, in case of float it is 0.0, character के केस में आप देख सकते हैं. So this was all for today, and I shall continue with the topic in my next video soon. If you found my lecture informative and you enjoyed that, then kindly like the video and do subscribe the channel. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.